Yes, hello students, welcome back to the yet another informative session. The chemical reaction is 2A give rise to 4B plus C in gas phase occur in gas phase occur in a closed vessel full stop. The concentration of B found to increase by found to be increased by what is given 5 into 10 to the power minus 3 mole per liter in 10 seconds. Calculate the rate of appearance of B and the rate of disappearance of A. Okay. Now this we have to calculate. First of all, we will write the rate equation for the given reaction. The differential rate equation is minus 1 by 2 dA by dt is equals to 1 by 4 dB by dt is equal to dC by dt. Okay. Now the first part, we have to calculate the rate of appearance of B, and here it is given that B is found to be increased by this in 10 seconds. Now what is rate? This is per second. So dB by dt will be what? 5 into 10 to the power minus 3 upon 10, because in 10 second it was given and we have to calculate for per second. So 5 into 10 to the power minus 4 mole per liter per second is the rate of appearance of B. Okay. Now after calculating the rate of appearance of B, we can easily calculate the rate of disappearance of A, because we know minus half dA by dt is equals to 1 by 4 dB by dt. Okay. So 4 comes here, minus half into 4, or we will say dA by dt is equals to 2 into 1 by 4, and dV by dt is 5 into 10 to the power minus 4. After solving this, we will get 2.5 into 10 to the power minus 4 mole per liter per second. Okay, clear? Now yet there is another question. To clear you more, now what does the question says? Question says we have a equation two NH3 give rise to N2 plus 3H2 if dNH3 by dt is 0.05 mole per liter per second
per second, calculate the rate of appearance of N2 and H2. Okay, so this is the question. We have to calculate the rate of appearance of N2 and H2. First of all, what we will do? We will write the differential rate equation, minus 1 by 2 d NH3 by dt is equals to d N2 by dt is equals to 1 by 3 d H2 by dt. Okay, we have to calculate the rate of appearance of N2 and H2, so we can equate d NH3 by dt is equals to d N2 by dt, and now we can substitute the values 0.05. This is how we can calculate the rate of appearance of N2. Okay, the rate of appearance of N2 will be 0.0, no negative sign will be used here, okay, because appearance it should be positive, na, 0.025 mole per liter per second, 0.025 mole per liter per second. Okay. Similarly, we can calculate by equating these two values, we can calculate the rate of appearance of H2 also. Okay, I am just giving you the answer, you can solve it by your own. Okay, we will neglect the negative sign. For appearance it should be positive. Okay, so it will be 0.075 mole per liter per second. Okay, mole per liter per second. So student, this was the topic we have done about the rate of a chemical reaction, and in the next meeting we will study the factors which affect the rate of reaction. Okay. Yes students, now we will going to study the factors which affect the rate of a chemical reaction. Now what are the factors which affect the rate of a chemical reaction? Factors which affect the rate of a chemical reaction. Okay. Now the first factor is concentration of reactant or reactants, concentration of reactants. बच्चों देखो, rate of a chemical reaction means the speed of a chemical reaction, how fast the reactants are consumed to give products. Okay, तो अगर बच्चों concentration react, देखो कोई भी chemical reaction कैसे होता है, केमिकल रिएक्शन होने के टाइम पर क्या होता है, रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं, कोलिजन्स करते हैं. ठीक है, अगर इफेक्टिव कोलिजन्स कर पाए तो वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बना पाते हैं या प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं. ठीक है, अब मान लो जितने ज़्यादा रिएक्टेंट्स होंगे उतने ज़्यादा कोलिजन्स होंगे, और जितने ज़्यादा कोलिजन्स होंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं इफेक्टिव कोलिजन्स के. ठीक है ना, तो जितने ज़्यादा रिएक्टेंट उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन. सो वी कैन से द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the rate of a chemical reaction. Got it? Okay. Now the second is temperature. Second factor is temperature. तो ये भी हमें पता है कि अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगी, और फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है तो वी से कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ अ केमिकल
रिएक्शन। ये देखा गया है फॉर एवरी 10 डिग्री राइज, for every 10 degree rise in temperature, rate of reaction becomes rate of a chemical reaction becomes double or even more, double or even more. अब ये कैसे? This will be discussed later on in this chapter. Okay, now we are moving to the third factor, that is presence of catalyst. Presence of catalyst. Now how presence of catalyst will affect your rate of reaction? This is also directly proportional to the rate of reaction. How? बच्चों कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट जो भी रिएक्टेंट्स हैं जिस पाथ से वो जा रहे थे उसमें अगर एनर्जी ज़्यादा है तो कैटलिस्ट इनको एक ऑल्टरनेटिव पाथ दे देता है जिस पर एनर्जी अब कम लगेगी। इस वजह से ज़्यादा रिएक्टेंट्स अब कंबाइन हो पाते हैं टू फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, तो कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, वी कैन राइट कैटलिस्ट decreases the activation energy। बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कोलिजन्स, ठीक है ना, कि ये प्रोडक्ट बना पाए। तो कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ठीक है, देयर बाय प्रोवाइडिंग अ डिफरेंट रूट, देयर बाय प्रोवाइड्स अ provides a different route, okay, which require less energy, which requires less energy, okay। like अगर हम बच्चों बात करें फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने H2 लिया और O2 लिया और मैं इनको कंबाइन करके ना H2O बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना, विदाउट एनी हेल्प, तो बच्चों ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, दिस विल नॉट अकर। ओके, सो लेकिन अगर मैंने इस पर H2 और O2 पर अगर मैंने डाल दिया यहाँ पर आपका एक कैटलिस्ट से प्लेटिनम मैंने डाल दिया, तो पता है ये रिएक्शन इमीडिएट हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस इमीडिएट रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्यों? यहाँ पर जब ये कंबाइन हो रहे थे तो इनको एनर्जी, इनके लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा थी, उतनी एनर्जी मिल नहीं पाई, तो ये चेंज नहीं हो पाए प्रोडक्ट में। कैटलिस्ट ने क्या किया? इनको एक दूसरा पाथ दे दिया, ऑल्टरनेटिव रूट दे दिया, जहाँ पर एनर्जी कम लग रही थी, तो इन दोनों ने कंबाइन करके जल्दी से प्रोडक्ट बना दिया। ओके, सो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस विगरसली। ओके, सो एंड आफ्टर दिस third, then we have fourth, that is surface area। surface area, मतलब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा ना, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना फास्ट होगा। ठीक है, मोर द सरफेस एरिया हायर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि आपके पास है एक लॉग ऑफ वुड और एक है चिप्स ऑफ वुड, तो कौन इजीली जल जाएंगे, कौन जल्दी से बर्न हो सकते हैं, फायर कैच कर लेंगे, लॉग ऑफ वुड या चिप्स ऑफ वुड? ठीक है, ऑब्वियसली चिप्स ऑफ वुड, बिकॉज चिप्स ऑफ वुड का सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना, लॉग ऑफ वुड से। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ आपसे कि आपको डिज़ोल्व करना है आपको शुगर के क्रिस्टल्स को और पाउडर ऑफ शुगर को, तो कौन जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा? पाउडर ऑफ शुगर। ठीक है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया से। ओके, देन देयर इज फिफ्थ फैक्टर, दैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। नेचर ऑफ फिफ्थ फैक्टर इज नेचर ऑफ
रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। किस तरीके के रिएक्टेंट्स हैं आपके जिनका आप रिएक्शन करा रहे हैं। सपोज अगर रिएक्टेंट्स आपके कहते हैं सॉलिड हैं, ठीक है ना, तो ये धीरे धीरे कंबाइन होंगे, थोड़ा सा रेट स्लो हो जाता है यहाँ पर। अगर लिक्विड है थोड़ा फास्ट हो जाएगा, और रिएक्टेंट्स आपके गैसियस फेज में है तो और फास्ट हो जाएगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी भी इसी ऑर्डर में बढ़ती है आपकी, है ना। सिमिलरली कि अगर हम देखें कि भाई हमारे पास सिंगल बॉन्ड वाले हैं रिएक्टेंट्स, या डबल बॉन्ड वाले हैं, या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ना, तो इसको ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ओके, सो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स ऑल्सो डिटरमाइन, ठीक है, बॉन्ड लेंथ, दीज फैक्टर डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। सो दिस वाज अबाउट द फैक्टर्स, दिस वाज अबाउट द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ओके, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बच्चों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम पूरा सिलेबस आपके लिए लाएंगे इधर ऑन माय चैनल टॉपर्स पॉइंट। तब तक के लिए आप लोग जा सकते हैं। नमस्ते।